Hello everyone. In this lecture, we'll deal with nomenclature of refrigerants. Okay. In last video, we have discussed about types of refrigerants. Okay. Now we'll discuss about nomenclature of refrigerants. That means how to represent refrigerants. Okay. So standard nomenclature of a refrigerant, will be like this. It will be started with alphabet R, capital R, then hyphen, then some number like 1, 2 or 1, 2, 3 like this. Okay, this nomenclature is an alphanumeric nomenclature. That means it consists of both alphabet and number. Okay, so in this video we'll discuss about how to write nomenclature of a refrigerant and how to write their corresponding chemical formula also. Okay, so in last class we have also discussed about types of refrigerants, so primary and secondary refrigerants, and in this video we will see how to write the nomenclature and chemical formula per hydrocarbon per saturated hydrocarbon based refrigerants and unsaturated hydrocarbon based refrigerants and inorganic refrigerants. Okay, first we'll deal with saturated hydrocarbon based refrigerants. Second one, unsaturated based refrigerants. Okay, saturated hydrocarbon based refrigerants and unsaturated hydrocarbon based refrigerants. Third one is inorganic refrigerants. Okay, inorganic based refrigerants. That means saturated means these types of refrigerants are derived from saturated hydrocarbon. Unsaturated means these types of refrigerants are derived from unsaturated hydrocarbons, and third one is inorganic refrigerants. Let's start with saturated hydrocarbon based refrigerants. Okay, ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बेस्ड रेफ्रिजरेंट होगा, इसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा। एंड इसका जो केमिकल फॉर्मूला होगा दैट इज CHFCl. C मीन्स कार्बन, H मीन्स हाइड्रोजन, F मीन्स फ्लोरीन, Cl मीन्स क्लोरीन, एंड MnPq. दैट मीन्स M is the number of carbon atoms, N is the number of hydrogen atoms, P is the number of fluorine atoms, Q is the number of chlorine atoms. This is the standard chemical formula for any types of refrigerants. So M means number of carbon atoms, N means number of hydrogen atoms, P means number of fluorine atoms, and Q means number of chlorine atoms. Okay, so for saturated hydrocarbon or it is unsaturated hydrocarbon. Okay, so for saturated and both unsaturated hydrocarbons these types of chemical formula will be used. हम लोग क्या करेंगे, यही chemical formula उसको use करेंगे. So and for saturated hydrocarbon based refrigerants, okay, जो रेफ्रिजरेंट का नोमेनक्लेचर होगा, वो ऐसा होगा दैट इज R हाइफेन M-1 N+1 P, R M-1 N+1 P. तो क्या स्टैंडर्ड होगा, दैट इज R हाइफेन M-1 N+1 P. ओके, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सपोज मुझे एक एग्जाम्पल दिया गया है R12. ठीक है, दैट मीन्स अगर R के बाद 2 डिजिट हो गया, अगर R के बाद 2 डिजिट और R के बाद 3 डिजिट, अगर R के बाद 2 डिजिट और R के बाद 3 डिजिट है, दैट मीन्स इट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बेस्ड रेफ्रिजरेंट. ठीक है, अगर 2 डिजिट है या 3 डिजिट है उसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बेस्ड रेफ्रिजरेंट. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो R12 हो गया कि R123 हो गया, उसको क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे. ठीक है, उसी हिसाब से हम लोग क्या निकालेंगे, MnP.
अगर ये इसको देखोगे तो यहाँ पर क्या है, एम एन पी है बट क्यू नहीं है, ठीक है। तो क्यू को कैसे निकालेंगे, क्यू को निकालने के लिए फॉर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसका एक फॉर्मूला है, एन प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 2m प्लस 2, एन प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 2m प्लस 2, ठीक है। इसी पर ये वाला फॉर्मूला को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, क्यू का वैल्यू निकालेंगे। ये वाला फॉर्मूला को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, क्यू का वैल्यू क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। सो क्या हम लोग क्या फर्स्ट पहले क्या करेंगे, अगर मुझे दिया गया है R123 तो मैं पहले क्या करूंगा, उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला में लिखूंगा। वो ये देखो 3 डिजिट है, उसको क्या करूंगा, ये वाला फॉर्मूला में लिखूंगा, RM-1 n+1 p के फॉर्मेट में लिखूंगा। उसके बाद मुझे तो यहाँ पर से एम एन पी मिल जाएगा बट क्यू नहीं मिलेगा। क्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, एन प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 2m प्लस 2 वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ से हम लोग क्यू निकालेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, एम एन पी क्यू मिल जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, CHF एम एन पी क्यू, जितना जितना वैल्यू एम एन पी क्यू का है सबका वैल्यू इसमें लिख देंगे, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, पहले जो भी दिया गया है कि हम लोग को रेफ्रिजरेंट, उसको क्या करेंगे, ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्मूला में लिखेंगे, ठीक है। अगर वो 2 डिजिट है या 3 डिजिट है, उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला से हम लोग को एम एन पी निकालेंगे कंपेयर करके। उसके बाद क्या करेंगे, क्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या पुट करेंगे, एन प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 2m प्लस 2 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये वाला फॉर्मूला यूज करके क्या निकालेंगे, हम लोग को क्यू निकालेंगे। क्यू निकालने के बाद क्या करेंगे, CHFCl एम एन पी क्यू। सो एम का वैल्यू, एन का वैल्यू, पी का वैल्यू, क्यू का वैल्यू डाल देंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा, उसका केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। सपोज मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, दैट इज योर R11। देखो आर के बाद क्या है, 2 डिजिट है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, R011। सपोज मैं एग्जाम्पल लिया R11, सो मैं क्या लूंगा, R011, ठीक है। उसको क्या करूंगा, स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करूंगा। स्टैंडर्ड कौन था, ये वाला था, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी मैं क्या करूंगा, इसको लिखूंगा कैसे, RM-1 n+1 p। अगर ये दोनों को तुम कंपेयर करोगे तुम लोग क्या मिलेगा, तो m-1 का वैल्यू कितना मिलेगा, 0। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, m इज इक्वल टू 1। सिमिलरली n+1 कितना हो जाएगा, 1, n+1 इज इक्वल टू 1, सो n कितना हो जाएगा, 0। p के वैल्यू कितना हो जाएगा, p के वैल्यू कितना होगा, 1। हम लोग क्या मिल गया अभी, एम एन पी मिल गया बट क्यू नहीं मिला। क्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एन प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 2m प्लस 2 पुट करेंगे। तो मैं एन के वैल्यू 0 है, पी के वैल्यू 1 है, क्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा 2m, एम का जगह कितना है, 1 है प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू 2 प्लस 2 दैट इज 4 माइनस 1 दैट इज क्यू इज इक्वल टू 3। अभी मुझे क्या हुआ, एम एन पी क्यू के वैल्यू पता लग गया। मुझे अभी क्या करना है, केमिकल फॉर्मूला लिखना है। केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए क्या करूंगा मैं, CHFCl एम एन पी क्यू। तो एम का वैल्यू कितना है, 1, एच का वैल्यू, एन का वैल्यू कितना है, 0, पी का वैल्यू कितना है, 1, क्लोरीन का क्यू का वैल्यू कितना है, 3। देखो एच एन का वैल्यू कितना है, 0, दैट मीन्स हाइड्रोजन एटम नहीं है उसमें। तो हाइड्रोजन एटम नहीं होगा तो क्या लिखूंगा मैं, CFCl3, ओके। तो हम लोग क्या मिला, R11 का जो केमिकल फॉर्मूला है वो ये, ठीक है। अगर एग्जाम में ये पूछ रहा है, कि बताओ ये जो CFCl3 है, वो किसका, कौन सा रेफ्रिजरेंट का केमिकल फॉर्मूला है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि ये जो CFCl3 है, ये कौन सा रेफ्रिजरेंट का केमिकल फॉर्मूला है। दैट मीन्स हम लोग को ये लिखना पड़ेगा कि ये किसका केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर सेम काम करेंगे, यहाँ पर किस स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखेंगे, CHFCl एम एन पी क्यू, ठीक है। उसके लिखने के बाद क्या करेंगे, इसी हिसाब से कंपेयर करेंगे मतलब देखो, तो हम लोग क्या देगा, CFCl3, ठीक है। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लिख रहा हूँ CHFCl, ठीक है, एम एन पी क्यू, ठीक है। तुम ये दोनों को कंपेयर करोगे तुम लोग क्या मिलेगा, देखोगे एम का वैल्यू, देखो कार्बन का वैल्यू, कार्बन का कितना आटम है, एक आटम है, दैट मीन्स एम इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। देखोगे ये वाला फॉर्मूला में देखोगे हाइड्रोजन नहीं है मतलब एन का वैल्यू कितना है, 0। एक यहाँ पर पी का, यहाँ से कंपेयर करोगे देखोगे ए के बाद पी है, ए के बाद कितना है, 1 है, दैट मीन्स पी कितना हो गया, 1। क्यू का वैल्यू कितना हो जाए कंपेयर करोगे तो क्यू का वैल्यू कितना होगा, 3। तो हम लोग क्या मिल गया, एम एन पी क्यू मिल गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करना पड़ेगा, उसका रेफ्रिजरेंट का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो रेफ्रिजरेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
देखो रेफ्रिजरेंट का फॉर्मूला क्या होगा, आर एम माइनस वन एन प्लस वन पी, आर एम माइनस वन एन प्लस वन पी। अगर यहाँ पर देखोगे एम का वैल्यू कितना मिला था 1, एन का वैल्यू कितना 0, पी का कितना 1, क्यू का कितना 3। तो मैं यहाँ पर कितना लिखूंगा, आर एम माइनस वन, एम का वैल्यू कितना होता है 1, 1 माइनस वन, एन का वैल्यू कितना होता है 0, सो 0 प्लस वन, पी का वैल्यू कितना होता है 1, सो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस वन कितना 0, सो आर हाइफन 0, 0 प्लस वन 1 1, सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ R11। सो R11 जो है ये किसका, ये जो R11 है वो कहाँ से निकला, वो निकला यहाँ से CFCl3। दैट मीन्स तुमको एग्जाम में ये वाला दिया जाएगा रेफ्रिजरेंट, पूछेगा केमिकल फॉर्मूला निकालने के लिए तो निकाल सकते हैं, तो रिवर्स में निकाल सकते हैं। ठीक है, और एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो और एक एग्जाम्पल लेते हैं R134, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो वही काम करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मूला में लिखेंगे आर एम माइनस वन एन प्लस वन पी। अगर ये दोनों को मैं कंपेयर करूंगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एम माइनस वन इज इक्वल टू 1, एन प्लस वन इज इक्वल टू 3, पी इज इक्वल टू 4। ठीक है, अगर मेरा एम माइनस वन इज इक्वल टू 1 हुआ तो एम कितना हो जाएगा 2, अगर मेरा एन प्लस वन 3 हुआ तो एन कितना हो जाएगा 2, देन पी कितना है 4। हम लोग क्या हुआ, अभी एम एन पी मिल गया बट क्यू नहीं मिला है, हम लोग को क्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एन प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू एम प्लस 2 वाला फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आर के बाद कितना डिजिट है, 3 डिजिट है, तो ये क्या है सैचुरेटेड है। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा अभी, तो ये वाला फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, क्यू निकालेंगे। सो एन इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू 4, क्यू एम का वैल्यू कितना है 2m, एम का वैल्यू कितना है 2 प्लस 2, सो ये कितना हो जाएगा 6 प्लस क्यू इज इक्वल टू, ये 2 2 4 प्लस 2 6, सो क्यू कितना हो जाएगा 0। ओके, सो अभी हम लोग क्या मिल गया, एम एन पी क्यू मिल गया। हम लोग क्या करना है, केमिकल फॉर्मूला लिखना है। सो हम लोग को पता है केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, CHFCl एम एन पी क्यू। सो एम का वैल्यू कितना है 2, एन का वैल्यू कितना है 2, पी का वैल्यू कितना है 4, क्यू का वैल्यू कितना है 0। दैट मीन्स इसमें क्या है, क्लोरीन नहीं है, क्लोरीन का आइटम नहीं है। सो C2H2F इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ R134। ठीक है, दैट मीन्स ये जो रेफ्रिजरेंट है R134, इसमें क्या नहीं है, क्लोरीन नहीं है। अगर किसी भी रेफ्रिजरेंट में क्लोरीन नहीं होगा तो वो इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट होगा। इसमें क्लोरीन नहीं है तो क्या, क्लोरीन नहीं मतलब वो क्या नहीं करेगा, ओजोन लेयर को डिप्लीट नहीं करेगा, खराब नहीं करेगा, होल नहीं बनाएगा। ठीक है, कभी कभी तुम लोग ऐसा भी देखोगे कि कभी कभी लिखा होगा R134 स्मॉल ए। ये स्मॉल ए का मतलब है ये क्या है, ये जो केमिकल फॉर्मूला है C2H2F4, इसका क्या है, एक आइसोमर है। ए का मतलब क्या है, ये सेम R134 है, बट इसमें क्या है, जो एटम का अरेंजमेंट है उसको चेंज कर दिया है। ठीक है, ये क्या है, इसका आइसोमर है। ठीक है, ऐसे और एक एग्जाम्पल लेते हैं सैचुरेटेड वाला का R290। देखो सिमिलरली यहाँ पर क्या है, आर के बाद 3 डिजिट है, उसको सेम स्टैंडर्ड फॉर्मूला में लिखेंगे आर एम माइनस वन एन प्लस वन पी। ये दोनों को मैं कंपेयर करूंगा, मुझे क्या मिलेगा, एम माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन इज इक्वल टू 9, देन पी इज इक्वल टू 0। मुझे मेरा एम माइनस वन कितना है 2 है, सो एम कितना हो जाएगा 3, एन प्लस वन इज इक्वल टू 9, सो एन कितना हो जाएगा 8, पी कितना है 0। हमको अभी क्या मिल गया, एम एन पी मिल गया, क्यों नहीं मिला, क्यों निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, एन प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 2m प्लस 2। तो एन कितना है 8, पी कितना है 0, क्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा इज इक्वल टू 2 इंटू एम, एम कितना है 3 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 8 प्लस क्यू इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6 प्लस 2 8, सो क्यू कितना हो जाएगा 0। सो यहाँ पर क्यू कितना है 0। अगर मैं उसका क्या करूँगा, अगर मैं इसका केमिकल फॉर्मूला लिखूंगा तो सेम स्टैंडर्ड केमिकल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, CHFCl एम एन पी क्यू। एम कितना है 3, एन कितना है 8, ठीक है, देन पी कितना है 0, क्यू कितना है 0। सो ये कितना है F0Cl0 मीन्स एफ नहीं है कि क्लोरीन नहीं है, दैट मीन्स फ्लोरीन नहीं है, क्लोरीन भी नहीं है, C3H8। ठीक है, दैट मीन्स ये जो C3H8 है वो किसका केमिकल फॉर्मूला है,
दैट इज R290। और ये जो C3H8 है, और जो C3H8 है इसको क्या बोलते हैं, प्रोपेन। दैट मीन्स प्रोपेन का एग्जाम में पूछेगा, प्रोपेन का रेफ्रिजरेंट का नॉमेनक्लेचर बताओ तो क्या होगा वो R290। और R290 का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा C3H8। ओके, हम लोग क्या कर सकते हैं, रेफ्रिजरेंट से केमिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं और केमिकल फॉर्मूला से रेफ्रिजरेंट कौन सा है वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सो ये क्या हो गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, जो भी रेफ्रिजरेंट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से डिराइव हुआ है इसका प्रोसीजर। अब हम लोग देखेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से जो रेफ्रिजरेंट डिराइव हुआ है उसका केमिकल फॉर्मूला एंड उसका नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो कार्बन से जो रेफ्रिजरेंट डिराइव हुआ है उसका केमिकल फॉर्मूला एंड उसका नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे वो देखें। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या होगा, आर के बाद क्या होगा 4 डिजिट रहेगा। सैचुरेटेड में क्या होगा, आर के बाद 3 डिजिट रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, आर के बाद क्या रहेगा 4 डिजिट रहेगा। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल में लिखूंगा R1150। ये क्या हो जाएगा, अभी ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से डिराइव होने वाला एक रेफ्रिजरेंट है। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला कैसा होगा, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा R1 M-1 N+1 P, R M-1 N+1 P। तो जो भी रेफ्रिजरेंट दिया होगा उसके आर के बाद 4 डिजिट है, उसको क्या करेंगे इसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखोगे तुम तो हम लोग क्या मिल सकता है, AMNP तो मिल जाएगा, AMNP तो मिल जाएगा, बट क्यू नहीं मिलेगा। प्रीवियस केस जैसा इसमें भी क्या होगा, क्यू नहीं मिलेगा। सो क्यू को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, N+P+Q इज इक्वल टू 2m वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। वहां पर क्यू क्या यूज कर रहे थे, N+P+Q इज इक्वल टू 2m+2। यहाँ पर क्या यूज करेंगे, N+P+Q इज इक्वल टू 2m। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड केमिकल फॉर्मूला है वही रहेगा CHFCl AMNPQ। एम का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, पी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स, क्यू का मतलब क्या है, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स। ठीक है, सो एक एग्जांपल लेते हैं, वही एग्जांपल लेते हैं R1150। देखो तो उसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड केमिकल फॉर्मूला में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मूला में लिखेंगे R1 M-1 N+1 P। ठीक है, ये जो वन वो तो रहेगा, हम लोग क्या करना है, यहाँ से कंपैरिजन स्टार्ट करना है, M-1 से P तक का ये जो कंपैरिजन यहाँ से स्टार्ट करना है। देखो M-1 कंपेयर करूंगा तो कितना होगा 1 होगा, N+1 को कंपेयर करूंगा कितना होगा 5 होगा, P को कंपेयर करूंगा तो कितना होगा, P कितना होगा 0 होगा। तो मुझे यहाँ से कितना मिलेगा, M-1 इज इक्वल टू 1, सो M कितना हो जाएगा 2। सिमिलरली N+1 इज इक्वल टू 5, सो N कितना होगा 4, P तो दिया हुआ है 0। अभी हम लोग क्या हो गया, M-P मिल गया, Q पता नहीं चला। सो Q निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, N+P+Q इज इक्वल टू 2M यूज करेंगे ये वाला। सो N कितना है 4, P कितना है 0, Q पता नहीं है, इज इक्वल टू M कितना है 2M। सो ये कितना हो जाएगा 4 + Q इज इक्वल टू 4। सो मुझे क्या मिलेगा, Q कितना मिल जाएगा 0, Q कितना मिलेगा 0। ठीक है, अभी देखो, अभी हम लोग के पास क्या है, M है, N है, P है, Q भी मिल गया। अभी हम लोग क्या करना पड़ेगा, उसका केमिकल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड केमिकल फॉर्मूला क्या है, CHFCl MNPQ। ठीक है, M का वैल्यू कितना है 2, N का वैल्यू कितना है 4, P का वैल्यू कितना है 0, Q का वैल्यू कितना है 0। F का वैल्यू सॉरी F में कितना आटम है 0 आटम, क्लोरीन में कितना है 0 आटम, दैट मीन्स क्लोरीन नहीं है कि क्लोरीन भी नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा C2H4। दैट मीन्स C2H4 को हम लोग क्या बोलते हैं, इथिन। दैट मीन्स एग्जाम में ये पूछेगा R1150 का केमिकल फॉर्मूला बताओ, दैट इज C2H4। और हम लोग को एग्जाम में पूछेगा कि इथिन का तुम लोग इथिन का रेफ्रिजरेंट वाला नोमेनक्लेचर बताओ, तो हम लोग क्या लिखेंगे R1150। अभी हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग इथिन से R1150 निकाल सकते हैं। देखो हम लोग क्या लिया गया C2H4, तो उसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड केमिकल फॉर्मूला में लिखेंगे, दैट इज CHFCl MNPQ। देखो यहाँ पर कार्बन है, हाइड्रोजन है, फ्लोरीन नहीं है कि क्लोरीन नहीं है, दैट मीन्स फ्लोरीन और क्लोरीन नहीं है, मतलब P के वैल्यू 0, Q के वैल्यू 0, दैट मीन्स P इज इक्वल टू 0, Q इज इक्वल टू 0। देखो
कार्बन का कितना आटम है 2, सो एम का वैल्यू कितना होगा 2। हाइड्रोजन का कितना आटम है 4, सो एन का वैल्यू कितना होगा 4। तो हम लोग क्या मिल गया अभी, हम लोग को एम एन पी क्यू सब मिल गया। दैट मीन्स मेरा एम कितना है, एम 2 है, एन 4 है, पी 0 है, क्यू कितना है 0 है। ठीक है, अभी मैं इसका नोमेनक्लेचर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो इनसे क्या लिखूंगा R1 M-1 N+1 P, R-1 M-1, एम का वैल्यू कितना है 2 - 1, एन का वैल्यू कितना है 4, देन पी का वैल्यू कितना है 0। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा R-1 2 - 1 कितना है 1, 4 + 1 कितना है 5 0। हम लोग क्या मिला R1150। दैट मीन्स हम लोग का एग्जाम में पूछेगा इथिन का रेफ्रिजरेंट नोमेनक्लेचर लिखो तो कितना होगा R1150, और हम लोग R1150 से ये निकाल सकते हैं और C2H4 से ये भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये किसके लिए हो गया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से जो रेफ्रिजरेंट निकाला गया है, जो डिराइव हुआ है, इसका नोमेनक्लेचर एंड केमिकल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, लास्ट हम लोग देखेंगे इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट का कैसे हम लोग नोमेनक्लेचर लिख सकते हैं। ठीक है, देखो इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट का नोमेनक्लेचर लिखने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, R700 प्लस जो भी कंपाउंड दिया गया है, जो भी रेफ्रिजरेंट है, सपोज एमोनिया है, वो एक कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर वेट 700 प्लस मॉलिक्यूलर वेट। ओके, 700 प्लस मॉलिक्यूलर वेट। देखो सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, फेमस एग्जांपल एमोनिया। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है NH3। तो इसका रेफ्रिजरेंट का नोमेनक्लेचर कैसा होगा, R700 प्लस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एमोनिया। देखो एमोनिया जो कंपाउंड है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, नाइट्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 3, दैट मीन्स 14 प्लस 3 हाइड्रोजन आटम, दैट इज 3 × 1, दैट इज 17। ठीक है, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, R700 प्लस 17, दैट इज इक्वल टू R717। दैट मीन्स R717 इज द नोमेनक्लेचर ऑफ एमोनिया। ओके, सिमिलरली सपोज मैं ले रहा हूँ वाटर, H2O। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, R700 प्लस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। तो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 2 हाइड्रोजन आटम, सो 2 प्लस 1 ऑक्सीजन 16 18। तो नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, 700 प्लस 18, दैट इज R718। दैट मीन्स ये किसका हो गया, वाटर का नोमेनक्लेचर कितना हो गया, R718। सपोज मैं कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड का हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, मोबाइल रेफ्रिजरेशन में यूज़ करते हैं और सॉलिड आइस प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या करेंगे, CO2। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होगा 700 प्लस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये कितना हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट, कार्बन का कितना है 12, 2 ऑक्सीजन आटम, 2 × 16, ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 32, दैट इज 44। सो ये कितना हो जाएगा, R700 प्लस 44, दैट इज इक्वल टू R744। दैट मीन्स R744 किसका नोमेनक्लेचर है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। ठीक है, इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी टाइप का रेफ्रिजरेंट हम लोग को दिया गया है, आइदर वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है या इनऑर्गेनिक है, उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, केमिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। और हम लोग को केमिकल फॉर्मूला दिया गया है, उसका क्या निकाल सकते हैं हम लोग, नोमेनक्लेचर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सैचुरेट के लिए क्या होगा, R के बाद 2 या 3 डिजिट रहेगा, अनसैचुरेटेड के लिए क्या होगा, R के बाद 4 डिजिट रहेगा, स्टार्टिंग किस में होगा 1 से होगा। इनऑर्गेनिक के लिए क्या होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, 700 से स्टार्ट होगा। सीरीज कौन सा सीरीज होगा, 700 सीरीज। और एक सीरीज है वो क्या होगा, 500 से स्टार्ट होगा, सपोज 520। ठीक है, ये जो सीरीज 500 वाला सीरीज है, इसको क्या बोलेंगे, एजियोट्रोप सीरीज।
ये जो रेफ्रिजरेंट है वो क्या कौन सा होगा, एजियोट्रोपिक रेफ्रिजरेंट होगा। और एक सीरीज है जो कि 400 से स्टार्ट होता है, इसको क्या बोलेंगे, जियोट्रोपिक रेफ्रिजरेंट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, जियोट्रोपिक। 5 से स्टार्ट होगा तो एजियोट्रोपिक, 4 से स्टार्ट होगा तो क्या होगा, जियोट्रोपिक। ओके, इसी हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी रेफ्रिजरेंट का नॉमेनक्लेचर एंड उसका केमिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सो थैंक यू ऑल।